Okay, so guys, let us start with today's class. In the previous class, we have discussed certain questions of probability. So today I will be continuing with that. After that, I will moving to the next topic. So I have told you in the previous class that one topic was left, and then we will continue with the next topic. So that one topic is Bayes theorem. So guys, you guys have already studied Bayes theorem in class 12th. So let us just quickly have a look on the formula, and then we will see how to apply that Bayes theorem formula into different type of questions. So guys, I have shared my screen. Quickly have a look on the formula, then we will discuss it. So this is the formula for Bayes theorem. So it is probability event I, given that A event has already been occurred. So you have to calculate probability of event I. What is probability of event I? Event I क्या represent करता है guys? Similar type of events there can be E1, E2, E3 and so on. But generally हमें क्वेश्चन में या तो 2 इवेंट्स गिवन होंगे या 3 इवेंट्स गिवन होंगे. उसके डिपेंडेंट हमें क्या निकालने को बोला है? Any probability EI given that A has already been occurred. So what is the formula for that? Now if we have been told to calculate E1 given A, तो अगर हमें E1 given A कैलकुलेट करना है गाइस, so what it will be? Probability of E1, so this should be E1 into probability of A given E1 into probability of A given E1 upon this denominator is what? This denominator is guys total probability. लास्ट क्लास में भी हमने एक दो क्वेश्चन करे थे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. जैसे हमने वो वाला करा था फीमेल अला कार्ट मेन्यू, मेल सेट मेन्यू, वो वाला क्वेश्चन में हम टोटल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट कर रहे थे. सिमिलरली जो डिनोमिनेटर दिया ये टोटल प्रोबेबिलिटी. कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी है? इसमें हम जितने भी इवेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट करके सम करने वाले. लाइक अगर हमारे 3 इवेंट्स है, सो व्हाट विल बी अ डिनोमिनेटर? वेल डिनोमिनेटर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस probability of E2 into probability of A given into plus probability of E3 into probability of A given E3. So in this way this Bayes theorem formula will get applied. Again this we have already covered in class 12. We are just revising different topics from your class 12. So in this class after 5-10 minutes we will be covering the probability topic. After that I will move to mean median mode. Okay, so let us practice 1 or 2 questions before winding up the probability topic. So guys, quickly practice this question. Quickly, in not more than 3 minutes. You should not take more than 3 minutes to solve this question. Very easy, very simple question. So question states, a person has 3 routes to get to work. The probability that he arrives on time using routes A, B and C are 60%, 62% and 70% respectively. If he is equally likely to choose any of the routes and arrives at work on time, what is the probability that he will choose route B? What is the probability that he choose route B? Quickly do it in not more than 2.5 minutes or 150 seconds. Guys, quickly solve it, then we are going to discuss this in next 2 minutes. Okay guys, let us discuss now. So guys, what is
द थिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन, हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूज रूट बी गिवन दैट ही अराइव्स एट वर्क ऑन टाइम। तो अगर मैं रूट चूज करने को इवेंट्स ए बी सी बोल दूं और टाइम पे रीच करने को मैं इवेंट टी बोल दूं, तो हमें क्या निकालना है गाइस यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टी दैट ही चूज रूट बी टू रीच ऑन टाइम। हाउ टू कैलकुलेट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन बी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जितने भी इस क्वेश्चन में इवेंट्स हैं हम सबको ऐड करेंगे। फर्स्ट इवेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t given c. In this way we will be calculating the total probability. Now guys, quickly tell me what is the probability of choosing each route. So they have told us that he arrives on time using a, b and c are this if he is equally likely to choose any of the route. Guys यहाँ पे हमें given था तीनों रूट्स चूज करने के हमें प्रोबेबिलिटी इक्वल गिवन है, तो तीनों रूट्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल गिवन है, तो मतलब हर एक रूट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 1/3। तो ये ए बी और सी हमें कितना दे दिया, 1/3। टी गिवन बी इज व्हाट, 62%, t given a is 60%, again t given b is 62% and t given c is 70%. Very simple question. Just put these values into this, your final answer will be 32.3%. 32.3%. Easy question. I am still giving you 30 seconds to think over it. जल्दी से देख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक, देन वी विल मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगेन गाइज, दीज क्लासेस आर फ्रॉम द स्टैट्स रिफ्रेशर सीरीज, वी आर जस्ट रिवाइजिंग अवर स्टैट्स टॉपिक्स। Okay, let us move to the last question. Do this, guys, do this question. A coin is selected at random from a pair of coins and tossed. Coin 1 is a double-headed coin, that is head on both sides. So double-headed coins किसी मूवी में देखा था? Maybe your generation has not seen that movie, शोले। शोले में हमेशा अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन रहता है जहाँ पे उसके दोनों साइड्स पे हेड्स होते हैं। अगर दोनों साइड पे हेड्स होगा गाइस, डबल हेडेड कॉइन होगा, तो उस केस पे हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 1, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0। Coin 2 is a standard unbiased coin. What do you mean by standard unbiased coin? That means probability of obtaining heads and tails are equal, that is 50%. You have to calculate the result of the toss is a head. They have told you कि हमने जब एक बार कॉइन उछाला, हमने टॉस करा, तो हमारे पास आउटकम क्या आया, हेड्स। लेकिन हमें बताना है what is the probability that it was coin 1 which was tossed. हमें ये तो पता लग गया कॉइन टॉस करके हमारा हेड्स आया, हमें ये बताना है कि जिस कॉइन पे हेड्स आया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन 1 हो। तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड्स ऑन कॉइन 1। दैट मीन्स ये हमें पता है कि हमारा हेड्स आ चुके हैं, गिवन इज द इवेंट दैट हेड हैज ऑलरेडी अकर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अकर्ड ऑन द coin 1. This we have to calculate. Quickly apply the base theorem again.
and tell me the final answer in not more than 60 seconds. Quickly. ओके गाइज, लेट अस डिस्कस नाउ. सो हमारा इवेंट क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है कॉइन 1 हो जिसपे हेड्स हमें पता आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कॉइन 1 हो. तो हमारा क्या इसको हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड्स ऑन कॉइन 1 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव चूजन कॉइन 1, दैट यू हैव चूजन कॉइन 1 अपॉन रिपीट हेड्स ऑन कॉइन 1 probability of choosing coin 1. What will be the next thing guys? Plus what will be the total probability? Probability of obtaining heads on coin 2 into probability of tossing coin 2. That's it. So what is the probability of obtaining heads on coin 1? शोले वाला coin है, दोनों साइड पे heads है, 1 into what is the probability of choosing coin 1? Guys दो ही coin है, coin 1 coin 2, दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ अपॉन 1 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ. दैट्स इट. व्हाट विल बी द फाइनल आंसर गाइस? फाइनल आंसर विल बी 2/3. गाइस आई एम गिविंग यू 30 seconds more. Quickly solve this question, then we are going to start with the next topic. Next topic name is summarizing data. Summarizing data. So our probability topic is over from Stats Refresher series. Next topic is summarizing data. Okay guys, let us start with this topic. So before I start, let us talk about data for the next 2 minutes. So guys, what do you mean by a data? Data से आपको क्या समझ आता है? So in whichever stream we work, चाहे आप एक टेलीकॉम कंपनी की बात करो, वोडाफोन, आइडिया, जियो, या फिर किसी भी चीज़ की बात करो, एक इंश्योरेंस कंपनी की बात करो, एक पेंशंस कंपनी की बात करो, फाइनेंस कंपनी की बात करो, हर एक को एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए होगा? डेटा. विदाउट डेटा कोई एनालिसिस हम नहीं बना सकते, नीदर टेक्निकल नीदर फंडामेंटल, कोई एनालिसिस हम नहीं कर सकते विदाउट आवर डेटा. सो डेटा के साथ साथ हमें कुछ मेजर्स भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं. सो उस डेटा का हमें एक सैम्पल तैयार करना पड़ेगा. जैसे अगर हम बोले कि वैक्सीनेशन हमें देखना है, तो वैक्सीनेशन हम देख सकते हैं कंट्री वाइज भी, स्टेट वाइज भी, अगेन स्टेट में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, जैसे मर्जी अपने डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो हर एक केस में कुछ भी हमें एनालिसिस करनी है, हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? डेटा की. अब हम पढ़ते हैं डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं. सो डेटा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. बहुत सारी उसके अंदर सब कैटेगरीज भी है, बट 2 मेन कैटेगरीज आर न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है गाइस? जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर हाइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल में भी 2 एग्जांपल्स है या फिर 2 उसकी सब डिवीजन है, डिस्क्रीट एंड
कंटिन्यूस। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे जब अपने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे हम कमिंग क्लासेस में, वहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, वहाँ पे भी हम कुछ कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप क्या समझते हो, डिस्क्रीट डेटा हमारा वो नंबर है जहाँ पे हम आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, और कंटिन्यूस डेटा हमारा कौन सा है, जहाँ पे हम आपको रियल नंबर्स में भी वैल्यूज बता सकते हैं। वहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे रियल नंबर, कुछ भी हम वैल्यू आपको बता सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया गाइस, हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्चुरीज इन इंडिया, कितने एक्चुरीज है इंडिया में, सो द काउंट इज अराउंड 430 440। तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या इंडिया में 440.5 एक्चुरीज है, ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली दैट शुड बी इंटीजर ओनली। तो ऐसा डेटा हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर एज, अब आप एज का आंसर क्या बोल सकते हो, 28.5, 18.5, 19.6, तो इस तरीके से हम अपनी एज आंसर कर सकते हैं। सो दैट इज अ कंटिन्यूस डेटा विच कैन बी आंसर्ड इन डेसिमल फॉर्म एज वेल। नेक्स्ट आई विल मूव टू कैटेगोरिकल डेटा। अच्छा, अब क्या होगा, न्यूमेरिकल तो समझ आ गया जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैटेगोरिकल डेटा क्या होगा गाइस, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा डेटा होगा जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैं पूछूं व्हाट इज योर जेंडर, इधर यू विल बी रिप्लाइंग मेल और फीमेल, तो क्या हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आप 10 मेल हो या 12 मेल हो, नहीं, इसको हम कुछ भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ इसकी कैटेगरीज हो सकती है मेल फीमेल। और इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ योर आइज, व्हाट इज द कलर ऑफ योर आइज, सो you have to say the color name, blue, black, brown. So in this way we cannot quantify our categorical data. categorical data को हम सिर्फ describe कर सकते हैं। अगेन इसके भी सब डिविजन्स है, एट्रीब्यूट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये डेटा पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अब हमें इस डेटा पे ही काम करना है। हम अपना मीन निकालना सीखेंगे, वेरिएंस निकालना सीखेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे, क्वार्टाइल्स निकालना सीखेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना सीखेंगे, और लास्ट में हम स्क्यूनेस निकालना सीखेंगे। अगेन हम ये सब कुछ सीख चुके हैं। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट रिवीजन ऑफ योर क्लास 12th ओनली। बस इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ आ जाए और क्या उसके फॉर्मूलाज थे। ओके, लेट अस मूव अहेड गाइस, क्विकली लुक एट दिस टेबल। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। जल्दी से इस टेबल को एक बार देख लो। हम जो सारी क्लास है आज की वो इस डेटा पे ही बेस्ड, यूजुअली मेनी क्वेश्चंस हम इस डेटा पे बेस्ड ही सॉल्व करने वाले हैं। सो क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस डेटा इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स, क्विकली। Okay guys, let us discuss now. So what data is this is saying, क्या कह रहे हैं डेटा। In the first column we have been given number of children under age 16. In the second column we are given with number of families in sample F. That means there are 0 children who are under age 16 और कितनी families है ऐसी, 8 families. So there are 8 families which are having no children under age 16. Then there are 12 families that are having 1 children each under age 16, again so on. So data समझ आया हमें। इस डेटा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज xi, दिस इज fi. What is xi, fi? xi is our observation, fi is our frequency. That means 0 number of children is my observation. ये मेरी एक observation है कि there are 0 children in a family. लेकिन 8 क्या है, 8 मेरी frequency है। Like instead of writing 0 0 0 0 0 0 0 0, instead of writing 0 8 times, how I have simplified this, 0 and 8. So ये simplify होकर क्या बता रहा है कि 0 मेरे डेटा में 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस 8 का अपना ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिख रहे हैं, 0 8। ऑब्जर्वेशन मेरी सारी की सारी 0 ही है, बस हमने इसको कैसे नोटिफाई करा दैट देयर आर
0 observations with 8 frequency. Similarly, there is 1 observation with 12 frequency, means 1 कितनी बार repeat हो रहा है मेरे data में 12 times, and so on. So guys, quickly calculate this question, not more than 30 seconds. 30 seconds ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. How would you calculate how many children there were all together? Quickly, कितने चिल्ड्रन टोटल है इस डेटा में, कैसे निकालेंगे हम, क्या पूछा है हमसे? क्विकली कैलकुलेट. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. Exactly, we have been asked here summation xi fi. That means we have to just multiply each of our observation with its corresponding frequency. Means 0 into 8 plus 1 into 12 plus 2 into 28 and so on. Last will be 8 into 0. What will be the total number of children, guys? Total number of children will be simply 186. 186. Any doubts? Okay, let us proceed to the next question, guys. Now before proceeding, quickly tell me the 3 questions. Let us check किस किस को remember है class 12th के formulas to calculating mean, mode and median. So I am giving you guys 5 full minutes. I am giving you 5 minutes to calculate these 3 measures for this data. जल्दी से इस डेटा के लिए ये तीनों मेजर्स निकाल के बताओ. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. बस यही है इस चैप्टर में, हमें यही चीज़ सीखनी है. मीन, मीडियन, मोड हम कैसे निकालते थे. ट्राई टू रिमेंबर. हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे. जल्दी से सोचो कैसे निकालते थे. Okay guys, first calculate mean. We are going to discuss mean in next 90 seconds. We are going to discuss the mean number of children. Mean number of children in each family in next 90 seconds. Quickly. So we have already calculated the total number of children in this data. Now we have to calculate the mean number of children in this data.
Okay guys, let us discuss the mean number of children now. So guys, mean number of children will be, मीन का फॉर्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के लिए, पहले फॉर्मूला से समझ लेते हैं. समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई. सो अगर मैं आपको फेयर में करवाऊँ, सो मीन फॉर्मूला विल बी समीशन एक्स आई एफ आई बाय समीशन एफ आई. बट गाइज अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी इजीली हो जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं डेटा में. अब हमें क्या निकालना था, मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, मीन्स हर एक फैमिली में एवरेजली कितने बच्चे होंगे अंडर एज 16. सो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज निकाल लेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज गाइज कितना आएगा, इन सबको सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारा 80 आने वाला है. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, 186 डिवाइड बाई 80. 186 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मीन का, आवर मीन आंसर विल बी 2.325. 2.325. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली में 2.325 बच्चे हैं अंडर एज 16. दैट्स इट. सो दिस इज द मीन मेजर ऑफ दिस डेटा. नेक्स्ट क्विकली मूव टू द मोड मेजर. फॉर दिस आई एम गिविंग यू 60 seconds more. Quickly think how to calculate mode. Guys, quickly think how to calculate mode. Last 10 seconds. Okay, let us discuss now guys. Mode क्या होता है डेटा का, mode is that number which is occurring in the data maximum times, means the observation with the maximum frequency. ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा हो हमारे डेटा में. तो अगर मैं इस डेटा में देखूं कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत बार अकर हो रही हो, सो दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस, ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो कौन सी इनमें से ऑब्जर्वेशन आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम. तो फ्रीक्वेंसी देखो 8, 12, 28, 19, 7, 4, 1, 1, 0. तो 28 इज द मैक्सिमम नंबर. तो 28 मेरा मोड नहीं होने वाला. क्यों नहीं 28 मोड होने वाला, 28 तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं थी मेरे डेटा में. अगर 28 कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं मेरे डेटा में तो वो मोड कैसे हो जाएगा. मोड शुड बी एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा. तो 28 तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. मैंने पहले भी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी नंबर अपने आप में कुछ नहीं बताते, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि 2 जो है डेटा में वो 28 टाइम्स अकर हो रहा है. तो उस केस के लिए क्या हो गया, 28 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इज 2. So mode number of children, what you will be writing, mode number of children under age 16 in each family is 2. So with this we have calculated two measures, mean measure and mode measure. Now quickly calculate the median measure. For this I am giving you 2 minutes more, then we will discuss. 2 minutes more, quickly do it. Quickly calculate the median measure of this data.
Guys, last 30 seconds, quickly do it. ओके गाइज, लेट अस डिस्कस मीडियन नंबर कौन सा होता है गाइज. हमने मीन देख लिया, एवरेज होता है, मोड देख लिया, जो बहुत बार अकर हो रहा हो, द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज मीडियन डेटा? मीडियन क्या होगा डेटा का गाइज? ऑलवेज रिमेंबर, मीडियन ऑफ द डेटा विल बी दैट नंबर दैट विल डिवाइड अवर डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मीडियन जो होगा हमारे डेटा का, वो हमारे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है इस डेटा में. तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप में से कोई आंसर देगा 9 ऑब्जर्वेशन. गाइस ये गलती मत करना, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं देखेंगे. इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 80. सो दैट मीन्स देयर आर 80 ऑब्जर्वेशन इन दिस डेटा. हमारी 80 एंट्रीज है इस डेटा में. 80 एंट्रीज कैसे है? 0 8 टाइम्स, 1 12 टाइम्स, 2 28 टाइम्स एंड सो ऑन. इस तरीके से हमारी 80 एंट्रीज है. अब आपको 8 और मोर एक नंबर तो दिख रहा है, लेकिन ये कोई एंट्री है ही नहीं हमारे डेटा में, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0. ये एक बार भी अकर नहीं हो रहा. लास्ट फ्रीक्वेंसी, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी डेटा की? दैट इज 7. सबसे पहला काम क्या था हमारे मीडियन के लिए? 80 निकालना, मतलब 80 ऑब्जर्वेशन. अब ऐसा नंबर निकालो कि जो इस डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो 80 का मिड क्या देखोगे? 80 का मिड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला. तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारा n इवन होगा, इफ n is even, then my median will be what? My median will be n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2. मतलब क्या हुआ? जब भी मेरा n इवन होएगा तब मुझे दो ऑब्जर्वेशंस निकालनी पड़ेगी और उन दोनों का एवरेज जो होगा वो मेरा मीडियन होगा. लेकिन जब n ऑड होगा तब मेरा सिंपली मीडियन क्या हो जाएगा? एनीवन? n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. अब 80 ऑड है, इवन है? 80 ऑब्वियसली इवन है, तो मेरा मीडियन क्या होने वाला है? n बाय 2, दैट मीन्स 40. n बाय 2 प्लस 1, दैट मीन्स 41. मीन्स 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. सो नेक्स्ट टारगेट विल बी to calculate the 40th observation and 41st observation of the data. How we are going to calculate that? Simply see, पहली 8 observations 0 है, अगली 12 observations हमारी 1 है. 20 observations हो गई यहाँ पे. नेक्स्ट 28 observations हमारी 2 है. दैट मीन्स 21st observation से लेके 48th observation तक सारी observations हमारी क्या है? 2. तो 40th observation में हमारी क्या होगी? 2 प्लस 41st ऑब्जर्वेशन में हमारी क्या होगी? 2. 2 प्लस 2 बाई 2 विल गिव यू 2. सो मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी 2. सो मीन आया हमारा 2.325, मोड आया 2, मीडियन आया 2. आई एम गिविंग यू 30 seconds. क्विकली मग अप ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्विकली. Okay, let us proceed now. Now our next thing will be to calculate the variance or standard deviation. But before that मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ. एक तो हमने वर्बली कर लिया कि 8 12 28, 8 12 एंड 28. इज देयर एनी अदर वे एज वेल? क्या कोई और तरीका भी है?
हमें मीडियन के लिए क्या, क्योंकि ऐसे तो हमें लिखना पड़ेगा। सो गाइस सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे इजी तरीका है हमारा टू कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 8, 20, 48, 67, 74, 78, 79 एंड 80। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के हमें क्या पता लग जाएगा, पहली 8 ऑब्जर्वेशन तक 0, 20 ऑब्जर्वेशन 1 पे खत्म हो रही है, 48 ऑब्जर्वेशन हमारी 2 पे खत्म हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा 20 से लेके 48 तक सारी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 2। तो ये इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी मीडियन निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ अगेन वी आर मूविंग टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पर मूव करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मीडियन का, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्विकली डू दिस इन नॉट मोर देन 3 minutes guys. 3 minutes is the max including the reading time. 1 minute reading time, 1 minute for part 1, 1 minute for part 2. Quickly. Guys, very easy question. Guys, last 30 seconds, then we will discuss this question. Quickly completed. Last 30 seconds. Okay, let us discuss now guys, what will be the first step to solve this question. Always remember, while calculating your median, your data should be formulated in either increasing order or decreasing order. We will prefer increasing order more. So what will be the increasing order of this data? 26, 28, then what is the next value guys? 34, again 34, then 39, 41 and 70. So how many total numbers are there? What is the frequency of the data? Frequency table तो है ही नहीं है, ये single observation है. Total number of observations कितनी है? 7. 7 is odd. So what will be the median? n plus 1 by 2th observation, that means 4th observation. First part का आंसर क्या आएगा? 4th observation, which is 34. Which is 34. So median for the part 1 is 34. What will be the median of the part 2? Part 2 का median क्या हो रहा है? इसमें हम एक और पॉलिसी होल्डर ऐड कर रहे हैं, एज्ड 41 ईयर्स. एक और पॉलिसी होल्डर ऐड कर रहे हैं, एज 41 ईयर्स. So there will be two number, 34 again and 41. Now if n is even, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? n by 2th and n by 2 plus 1th. That means 4th observation plus 5th observation divided by 2. Your 4th observation will be 34, 5th observation will be 41. No, 4th observation. So guys, see it very clearly. I have written 41 in front of 39. ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने जान के आपको लिख के दिखाया था. अब गलती ये नहीं होनी चाहिए.
हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, दैट मीन्स जो 41 आएगा ये 39 के बाद आएगा, सो दैट मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन विल बी 34 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन विल बी 39. So 34 plus 39 divided by 2 which will give you 36.5. Guys, clear? Very simple. Okay, now we will be moving to variance and standard deviation. Okay guys, अभी तक जो आप लोगों ने क्लास 12th में वेरिएंस पढ़ा था और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था वो आपने पॉपुलेशन के लिए पढ़ा था. अब हम सबसे पहले ये समझते हैं एक पॉपुलेशन और एक सैंपल में फ़र्क क्या है. हम जो अभी पूरे स्टैट्स में पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे ए सेट में पढ़ते हैं, हम अपने CS1 में पढ़ेंगे, CS2 में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम जब भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम पॉपुलेशन का नहीं निकालेंगे, हम हमेशा सैंपल का निकालेंगे. नाउ लेट अस ट्राई टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन. सो गाइस, पॉपुलेशन से मेरा क्या मतलब है, बहुत बड़ा डेटा. जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को अगर टेस्ट करूं तो वो क्या हो जाएगी मेरी एक पॉपुलेशन. लेकिन अगर मैं बोलूँ उस पूरे इंडिया के डेटा में से मैं सिर्फ दिल्ली की पॉपुलेशन की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सैंपल. अब मैं बोलूँ उस दिल्ली में से भी मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, नाउ सपोज नॉर्थ कैंपस की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, वो भी क्या हो गया मेरा एक सैंपल. अब नॉर्थ कैंपस में मैं बोलूँ, मैं अगर सपोज नॉर्थ कैंपस में 10 ब्लॉक्स हैं, उन 10 ब्लॉक्स में मैं सिर्फ एक ब्लॉक पे टेस्टिंग कर रहा हूँ तो वो भी अगेन मेरा क्या हो गया, सैंपल. So sample can be any set of data which has been taken from the overall population. तो population समझ लो सब कुछ है, everything is the population. उस population में से हम कुछ सैंपल निकालेंगे. So तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक population का मीन और वेरिएंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इसकी जगह हम क्या निकालेंगे, हमेशा एक सैंपल का मीन और वेरिएंस. तो सैंपल का मीन अभी हमने निकालना देख लिया, अब सैंपल का वेरिएंस निकालना देखते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला for calculating sample variance? 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar का होल स्क्वायर. गाइस, इसके साथ ही मैं आपको पॉपुलेशन के वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, कभी कभार आपको जरूरत पड़ सकती है. इट विल बी 1/n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन वेरिएंस. अब कंफ्यूज मत होना, पॉपुलेशन मतलब सब कुछ, सैंपल मतलब उसका एक सबसेट, ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि पॉपुलेशन के लिए याद रखना पूरा इंडिया, सैंपल के लिए याद रखना दिल्ली या फिर नारायणा विहार, पटेल नगर, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, एनीथिंग, मालवीय नगर, साकेत, एनी एरिया. इज दिस क्लियर? तो जब मैं इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करूंगा गाइस, मेरा नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, दिस 1/n-1 समीशन xi स्क्वायर माइनस nx बार स्क्वायर. तो ये इसकी एक्सटेंशन है. तो डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अब इसी में ही अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो, सो गाइस देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. So what is this term called, S square? This term S square is sample variance. This is not the only variance. So इस S square को हम क्या लिखेंगे? This is sample variance. Now what they have calculated here? They have calculated sample variance for that family वाला data. जो भी अभी हमने family वाला data देखा था उसके लिए उन्होंने sample variance निकाला. ओके, सो गाइस वी वर डिस्कसिंग दिस फैमिली वाले डेटा का हम सैम्पल वेरिएंस कैसे निकालेंगे. सो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग द सैम्पल वेरिएंस फॉर दैट फैमिली वाला डेटा. 1/n-1, n was 80, so it will become 1/79 because n-1 592 will be summation fi xi square. हर एक ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी माइनस nx बार स्क्वायर. ये nx बार स्क्वायर क्या होगा, 280, और 186/80 क्या था, 2.325, जो कि हमने क्या निकाला था, मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली. सो इन दिस वे योर सैम्पल वेरिएंस ऑफ दैट फैमिली वाला डेटा विल बी 2.02. और इसका ही अगर मुझे निकालना है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. इज दिस क्लियर गाइस? तो वेरिएंस का हमारा अंडर रूट होके कितना आया, 1.42. अगेन मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलूंगा, व्हाट विल आई से इट, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. गाइस इज दिस क्लियर?
क्लियर है सबको? चले आगे. ओके गाइस, लेट अस प्रोसीड फर्दर. ओके, क्विकली डू this very simple question. Very simple question. Question 1.11. Guys, this should not take more than 2 minutes. वेरी सिंपल. हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इस पर. मीन तो बहुत सिंपल है. समीशन एक्स आई बाई एन इट विल बी 313.53. 313.53. नेक्स्ट इज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मीन्स you have to calculate only s. Only s. So first you will be calculating s square. S square will be 1 upon 99. Why 1 upon 99? 1 upon n minus 1. n is 100, so 1 upon 99 into what? Summation xi square. That means 10,687,041 माइनस क्या करेंगे? n x बार स्क्वायर. n कितना है हमारा? 100 इंटू एक्स बार स्क्वायर. x बार कितना है हमारा? 313.53 का स्क्वायर. दैट्स इट. तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा गाइस? क्विकली कैलकुलेट. 8655.91. 8655.91. सो लेकिन ये हमारा क्या निकला गाइस? s स्क्वायर निकला है. अब हमें क्या निकालना है? s, विच इज अंडर रूट ऑफ 8655.91, विच इज सिंपली 93.04. 93.04. So guys, for these type of calculations, no need to do on your copy pen. You just need to open your scientific calculators and quickly calculate it. And if you have not purchased it, again I am referring to FX82ES Plus. Guys, buy this calculator only. This is from company Casio. Casio FX82ES Plus. This is the best calculator to use while doing all your actuarial exams. This is the best one. Okay, let us proceed now. Our next topic will be interquartile range. Interquartile range. Anyone, what do you understand by interquartile range? इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इसको मैं शॉर्टकट में IQR भी बोलता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय IQR? सो गाइज IQR क्या होता है? Q3 minus Q1. नाउ यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज Q3, व्हाट इज Q1? Q1 इज क्वार्टाइल 1, Q3 इज क्वार्टाइल 3. सो गाइज नाउ सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स माई होल डेटा. ये जो लाइन है ये मेरा पूरा डेटा डिनोट कर रहा है. 0 से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है. ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक जाएगी, वैसे डेटा 0 से 1 तक जा रहा है. अब इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूँ. 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1. सो देर आर 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस डेटा. इसको लाइन मत सोचो, ये समझो एक डेटा है. अब डेटा की जो 25% वैल्यूज है, मतलब आपको किस नंबर तक 25% वैल्यूज मिल जाएंगे गाइस? Q1 तक. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी, अगर मेरा x एक नंबर है जो कि उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, x लेस देन Q1. ये हम रैंडम वेरिएबल की क्लास में पढ़ेंगे. x मेरे एक रैंडम वेरिएबल है. अभी जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी रैंडम वेरिएबल तब आपको और अच्छे से समझ आएगा. ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन Q1 विल बी इक्वल्स टू 0.5. दैट मीन्स उस पूरे डेटा में Q1 से कितनी वैल्यूज छोटी होंगी? 25% वैल्यूज Q1 से छोटी होंगी. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी x लेस देन मीडियन. मीडियन से कितनी वैल्यूज छोटी होंगी गाइस? मीडियन से 0.5 वैल्यूज छोटी होंगी. दैट मीन्स 50% वैल्यूज विल बी स्मॉलर देन मीडियन एंड एग्जैक्टली 50% वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन मीडियन. लास्ट Q3. सो कितनी वैल्यूज जो होंगी वो Q3 से छोटी होंगी? 75%. 75% वैल्यूज ऑफ योर डेटा will be
smaller than Q3. So this is the implication of Q1, median and Q3. So what quartiles are doing? Quartiles are breaking your data into 4 equal parts. This is called Q1. The first 25%, first 50% will be called median, and first 75% will be called Q3. Now what is interquartile range? Interquartile range is Q3 minus Q1. Means ये पूरे Q3 डेटा में से अगर मैं इनिशियल वाला Q1 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरक्वार्टाइल रेंज. दैट मीन्स एरिया बिटवीन Q1 and Q3. Always remember, area between Q1 and Q3 is my IQR. IQR is area between Q3 and Q1. Is this clear? Okay. Now let us see it numerically. So guys, what is the formula for Q1 and Q3 numerically? So सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. सो गाइस, मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? n+1/2th ऑब्जर्वेशन. इसी के लिए हम Q1 को क्या डिफाइन करेंगे? n+2/4th ऑब्जर्वेशन. n+2/4th ऑब्जर्वेशन. और Q3 को क्या डिफाइन करेंगे? Q3 को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नीचे से n+2/4th ऑब्जर्वेशन, या फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, n+2/4th ऑब्जर्वेशन प्लस 1. यहाँ पे TH में हटा देता हूँ. TH हम एक ही बार पूरे ब्रैकेट पे बाहर लिख देंगे. n-n+2/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज फॉर Q3. Q3 का आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो. तो ये इतनी ऑब्जर्वेशन है गाइज. नाउ क्विकली कैलकुलेट IQR फॉर फैमिली वाला डेटा. फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट Q3, देन Q1, एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन IQR. क्विकली डू इट. Guys, I am giving you 2 minutes to calculate IQR for family wala data. Then we will discuss. Guys, last 60 seconds. Quickly complete it. IQR for family data. So what was the n in family data? N was 80. तो Q1 मेरा क्या होगा guys? 80 plus 2/4. What is 80 plus 2/4? 82/4 is 20.5th ऑब्जर्वेशन. 20.5th ऑब्जर्वेशन. और Q3 कौन सी होगी? n-n+2/4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. n अगेन 80 पुट करो. चलो पुट करके देखते हैं. 80 माइनस 20.5 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. कितना आएगा आंसर? आंसर विल बी 60.5th ऑब्जर्वेशन. सो Q1 आया मेरा 20.5th ऑब्जर्वेशन, Q3 आया मेरा 60.5th ऑब्जर्वेशन. अब देखते हैं निकालेंगे कैसे इसको. अगेन मैं फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे चलता हूँ. तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे जब मैं देखूंगा, यहाँ मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई थी. क्या मुझे यहाँ पे 20.5th ऑब्जर्वेशन मिल सकती है? नो.
यहाँ या तो यहाँ पे 20th ऑब्जर्वेशन मिलेगी या 21st ऑब्जर्वेशन मिलेगी। 20.5th ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होगी, तो 20.5th ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 20th ऑब्जर्वेशन निकालूंगा और 21st ऑब्जर्वेशन निकालूंगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। सो व्हाट इज 20th ऑब्जर्वेशन इन दिस डेटा, सी 20 के आगे 1 आ रहा है और 20 के बाद अगले 28 ऑब्जर्वेशन 2 है। सो 1 + 2/2 इज 1.5, so that means my Q1 is 1.5. Now similarly calculate Q3. Q3 क्या था मेरा, 60.5th ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही मेरे मुझे डेटा में 60.5th ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, या तो मुझे 60th ऑब्जर्वेशन मिलेगी या फिर 61st ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज 60th ऑब्जर्वेशन इन योर डेटा, सी 8, 20, 48, आफ्टर 48 49th ऑब्जर्वेशन से लेके 67th ऑब्जर्वेशन तक सारी की सारी क्या है, 3। दैट मीन्स 60th ऑब्जर्वेशन भी 3 है, 61st ऑब्जर्वेशन भी 3 है, 3 + 3/2 भी 3 ही आने वाला है। सो Q3 इज 3। व्हाट इज IQR, IQR क्या आ जाएगा, Q3 - Q1 विच इज 3 - 1.5 विच इज 1.5। सो IQR ऑफ दिस फैमिली वाला डेटा इज 1.5। क्लियर, क्विकली नोट इट डाउन, देन वी आर मूविंग अहेड क्विकली। Okay guys, let us proceed now. आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको IQR निकालने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए IQR के लिए। सो क्विकली सॉल्व। ओके, फॉर दिस यू विल बी रिक्वायरिंग द वाटर लीकेज डेटा। गाइस, let me show you the water leakage data first. So guys, this is water leakage data. You can just click a snap or take a screenshot of this, because this will be required for the next question. Okay, I hope all of you have taken a pic or a screenshot of this water leakage data. Now I will show you the question. Guys, quickly do this question. Question 1.13. Quickly. Last question of today's class. इसके बाद अगेन इसका थोड़ा सा टॉपिक बच जाएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको। और नेक्स्ट क्लास गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपना रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा और ये मीन मीडियन मोड पढ़ा, ये आप लोगों ने क्लास 12th में देख रखा था, लेकिन रैंडम वेरिएबल ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में आप लोगों ने नहीं देखा हुआ। और अगर आप IFOA सोसाइटी से अपना एक्चुअल करियर स्टार्ट करते हो, सो दे एज्यूम कि रैंडम वेरिएबल आपको आता होगा। तो ये एक एरिया ऐसा है रैंडम वेरिएबल
जो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था आपको कि ये एज्यूम करते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन ना आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ, ना आपको एक्चुअल में पढ़ाया जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैंडम वेरिएबल. नेक्स्ट 2 classes will be very important. So I think I will take 2 more classes for your stats refresher things. Max 3, 2 to 3 more classes. Okay guys, quickly do question 1.13, last question of today's class. This should not take more than 60 seconds. जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करने को कहा था, फोटो लेने को कहा था, उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. बस मैंने आपको बता दिया था कि वो डेटा का रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया था वो डेटा, क्योंकि इन्होंने अपने आप ही उसको अरेंज करके बताया हुआ है कि 25th और 26th वैल्यू ये है एंड 75th एंड 76th वैल्यू ये है. What you have to calculate? You have to calculate the IQR for the water leakage data. So what will be the IQR? IQR will be Q3 minus Q1. You have to calculate Q3 and Q1. First I will talk about Q1. Q1 क्या होगा guys? 100 plus 2 by 4. It will be 25.5. 25.5 वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिलने वाली, या 25th होगी या 26th होगी. तो 25th एंड 26th वैल्यू हमें गिवन है 259 एंड 260. व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस 259 एंड 261? इट विल बी 260. नाउ Q3 will be again 100 minus 25.5 plus 1, that will be 75.5th value. 75.5th वैल्यू तो कोई होगी नहीं डेटा में. 75th वैल्यू प्लस 76th वैल्यू डिवाइड बाय 2. 75th value and 76th value, that means 373, 374 divided by 2, it will be 373.5. What will be IQR? IQR will be simply 113.5. That's it. 113.5 is the IQR of this data. Guys, clear? Okay, with this I will conclude today's class guys. Only one topic left, skewness, and one more question we will be doing in next class. So it will take hardly 10 to 15 minutes more to wrap up this topic, and then we will be jumping towards our next topic of Stats Refresher series, that is random variable. Again I am saying very important, don't miss the next class. It will going to be a very important class. Okay, so that's it for today. We will continue in the next class.